Now example number second. Second example, I find the 13th term in the expansion of 9x minus 1 by 3 root x whole raised to 18, x not equal to 0. 13th टर्म निकालना है T13. एक्सपेंशन किसका है 9x माइनस 1 बाई 3 रूट एक्स होल रेस्ट टू 18. T13 यानी T12 प्लस 1. T12 प्लस 1 TR प्लस 1 का फॉर्मूला x plus y raised to n. TR plus 1 equal to NCR x to the power n minus r y raised to r. x plus y raised to n. इसमें r plus 1 टर्म है NCR. r plus 1 है तो 1 कम करके लेना है NCR. x का पावर n माइनस r और y का पावर r. यहाँ पे T13 यानी T12 प्लस 1 यानी r की वैल्यू हो गया 12. NCR n इक्वल टू 18. 18C NCR 18C12. फर्स्ट टर्म है 9x रेस टू 18 माइनस 12 n माइनस r. सेकेंड टर्म है माइनस 1 बाई 3 रूट एक्स रेस टू r n है 12. तो हो गए माइनस साइन रेस टू 12 यानी माइनस 1 रेस टू 12. 18C12 को लिखेंगे 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस 12 यानी 6 फैक्टोरियल. 9x होल रेस टू 6 and 9 रेस टू 6 इंटू x रेस टू 6. 1 बाई 3 रेस टू 12 और 1 बाई रूट एक्स होल रेस टू 12. पूरे टर्म्स को सिंप्लीफाई किया. माइनस 1 रेस टू 12 यानी 1. 18 फैक्टोरियल को स्प्लिट अप करना है 12 फैक्टोरियल तक. 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल और ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल. 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 9 रेस टू 6 x रेस टू 6 और 1 बाय रूट एक्स रेस टू 12 है तो 1 बाय एक्स रेस टू 6. 1 बाय एक्स होल रेस टू 6 ये टर्म कैंसिल. 1 बाय 3 रेस टू 12. 1 बाय 3 रेस टू 12 मीन्स 3 रेस टू 6. 3 रेस टू 6 मीन्स 9 रेस टू 6. 9 रेस टू 6 हो गए. ये 9 रेस टू 6 9 रेस टू 6 कैंसिल. 18 और 6 इंटू 3 18 कैंसिल. 5 3 15 4 4 16 2 2 4. अब 17 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 3 इसका मल्टीप्लीकेशन 18564. The 13th term is 18564. The term is independent of x. इसके बाद है find a, b and n in the expansion of a plus b raised to n. If the first three terms in the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively. First three terms यानी T1 first term, T2 second term, T3 third term ये given है. First three terms of the expansion are 729, 7290 and 30375. And therefore T1 TR plus 1 का फॉर्मूला NCR x रेस टू n माइनस r y रेस टू r. T1 यानी T0 प्लस 1 यानी r की वैल्यू हो गई 0. r की वैल्यू 0 मीन्स NC0. फर्स्ट टर्म है a रेस टू n माइनस r यानी n माइनस 0. सेकेंड टर्म है b रेस टू r b रेस टू 0. NC0 मीन्स 1 b रेस टू 0 मीन्स 1 a रेस टू n. So a raised to n equal to 729. T2 means T1 plus 1. यहाँ पे r equal to 1 एक से कम करके लेना है. r equal to 1. NC1 first term a raised to n minus r means n minus 1. Second term b raised to 1. NC1 यानी n
a raised to n minus 1 into b raised to 1 means b. That is 7290. Equation number 2. T3 में r की वैल्यू 2 हो गई, nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 a raised to n minus r b raised to r. nc2 यानी n into n minus 1 upon 2 2 into 1 यानी 2 a raised to n minus 2 into b square equal to 30375. अब ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करना है, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे. डिवाइड 2 by 1 वी गेट a raised to n into a raised to n minus 1 into b upon a raised to n equal to 7290 upon 729. अब ये a raised to n minus 1 यानी a raised to n डिनोमिनेटर में आएगा a n into a raised to n upon a और डिनोमिनेटर b as it is, डिनोमिनेटर का a raised to n as it is equal to 7290 upon 729, that means 10. a raised to n cancel, that means nb upon a equal to 10. Divide equation 3 by 2. थर्ड इक्वेशन है n into n minus 1 upon 2 है a raised to n minus 2 b raised to 2 upon second equation n into a raised to n minus 1 into b equal to 30375 upon 729. 81 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो 375 अपॉन 90, फिर से 15 से डिवाइड किया तो 25/6, ये 2 1 is 2 2 3 6. a raised to n minus 2 upon a raised to n minus 2 means a raised to n upon a square, a raised to n minus 1 means a raised to n upon a, तो a ऊपर चल जाएगा, b स्क्वायर b कैंसिल, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं n into n minus 1 a raised to n minus 2 means a raised to n upon a raised to 2, b square न्यूमरेटर में as it is, डिनोमिनेटर में n into a raised to n minus 1 means a raised to n upon a into b as it is. ये a कैंसिल हो गया, एक b कैंसिल, a raised to n कैंसिल, n कैंसिल, n into n minus 1 into b upon a equal to 25/3. इसको सिंप्लीफाई किया तो nb माइनस बी अपॉन a यानी nb अपॉन a माइनस बी अपॉन a इक्वल टू 25/3. nb अपॉन a की वैल्यू है 10, 10 माइनस b बाई a इक्वल टू 25/3. b बाई a इक्वल टू 10 माइनस 25/3, 30 माइनस 25 मीन्स 5, 5/3. b बाई a इक्वल टू 5/3. From 4 and 5, n into b by a equal to 10 है, n into b by a means 5/3 equal to 10. 30 divided by 5 6, n equal to 6, n की वैल्यू आ गई 6. अब n की वैल्यू 6 से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, we get a raised to 6 equal to 7 to 9, a raised to 6 equal to 7 to 9, 7 to 9 यानी 3 raised to 6, a raised to 6 equal to 3 raised to 6, a equal to 3. From equation number 5, b upon a equal to 5/3, b by a equal to 5/3, b upon a की वैल्यू 3 equal to 5/3, 3 cancel, b equal to 5, and therefore a equal to 3, b equal to 5, n equal to 6. How many terms are free from radical signs in the expansion of y raised to 1 by 5 plus x raised to 1 by 10 equal to 55? In the expansion of y raised to 1 by 5 plus x raised to 1 by 10 whole raised to 55, general term का formula t r plus 1 equal to nc r, first term raised to n minus r, second term raised to r, y raised to r. यहाँ पे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन है 55, तो 55 सी आर, फर्स्ट टर्म है वाई रेस टू 5 रेस टू एन माइनस आर यानी 55 माइनस आर, सेकेंड टर्म है एक्स रेस टू 1 बाय 10 रेस टू आर, ये हो गया 55 सी आर वाई रेस टू
55 माइनस आर डिवाइड बाय 5 यानी 55 अपॉन 5 मीन्स 11 माइनस आर बाय 5 एक्स रेस टू 1/10 इंटू आर मीन्स आर बाय 10। यहाँ पर आर बाय 10 और आर बाय 5 और आर बाय 10 दोनों डिविजिबल बाय 5 होना, डिविजिबल बाय दोनों भी डिवाइड होना, दोनों इंटीजर्स आने के लिए आर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10। आर की वैल्यू 0 से 55 तक ले सकते हैं। 5 और 10 का एलसीएम दैट इज 10। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0, 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40, 50 इतने आर की वैल्यूज रखते हैं। तो वी गेट द टर्म्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल साइन, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रैक्शन। और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर की वैल्यूज कितनी हो गई? 6 वैल्यूज है। सो देर आर 6 टर्म्स which are independent of radicals. R equal to 0 and the first term, R equal to 10 and the 11th term, R equal to 20 and the 21st term, R equal to 30 and the 31st term, R equal to 40 and the 41st term, R equal to 50 and the 51st term. इसमें शॉर्टकट मेथड इंडेक्स है n, इसमें y का पावर है 1/5 और x का पावर है 1/10। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, 5 और 10 का एलसीएम है 10। तो 55 n यानी 55 को 10 से डिवाइड करना है। लेंगे इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शन छोड़ देना है। यानी 55 डिवाइड बाई 10 है 5 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो सिर्फ 5 लेंगे इंटीग्रल पार्ट, रिमाइंडर छोड़ देना है। इंटीग्रल पार्ट यानी पॉइंट छोड़ देंगे। अब इसमें आर की वैल्यू 0 रह सकते, अपन ने अभी देखा आर की वैल्यू 0 रह सकते। यदि आर की वैल्यू 0 पॉसिबल है तो ऐड 1, आर की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है यानी आर इक्वल टू 0 रखने के बाद में यदि फ्रैक्शन आता है तो 1 ऐड नहीं करेंगे। 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6। पहले इंडेक्स n 55, 1/5 और 1/10, 5 और 10 का एलसीएम है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे। 55 डिवाइड बाई 10 यानी 5.5, 5.5 में से सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेंगे 5, और इसमें r की वैल्यू 0 रह सकते। NCR x रेस टू n माइनस r y रेस टू r, क्या इसमें अपन ने देखे r में भी 0 यदि इंक्लूड है तो ऐड 1, 0 इंक्लूड नहीं है, r की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है तो फिर 1 ऐड नहीं करना है। यहाँ पे 1 ऐड करने के बाद में 5 + 1 यानी 6, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6। वेरी शॉर्टकट मेथड है। The coefficients of r-1, rth and r+1th terms in the expansion of x plus 1 raised to n are in the ratio 1:3:5. Find n and r. r-1th term, rth term और r+1th term का coefficients in the expansion of x plus 1 raised to n are nc r-2। अब ये x + 1 रेस टू r या 1 + x रेस टू n, कोएफिशिएंट ऑफ rth term is NCR, x रेस टू r, x NC 0, x रेस टू 0। और अपने क्या आना है इसमें, दिस इज r+1th term यानी NCR x रेस टू r, r-1th term, r-1th में यहाँ पे -1 आएंगे, यहाँ पे -1 यानी NC r-2, r-1 के लिए r-2, r के लिए r-1 और r+1 के लिए r, यानी कोएफिशिएंट्स हो गए NC r-2, NC r-1, NC r। r+1th टर्म का कोएफिशिएंट्स है NCR, r-1 का कोएफिशिएंट NC r-2, r+1th टर्म का कोएफिशिएंट NCR, rth टर्म का कोएफिशिएंट NC r-1। ये तीनों कोएफिशिएंट्स कौन से रेशियो में है? 1:3:5, 1:3:5 यानी फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म इक्वल टू 1/3, सेकंड टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म इक्वल टू 3/5। NC r-2 अपॉन NC r-1 इक्वल टू 1/3,
एन सी आर माइनस 1 डिवाइड बाय एन सी आर माइनस एन सी आर इक्वल टू 3/5। अपने पास ये फॉर्मूला है कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। एन सी आर और इसका पहले का कोएफिशिएंट है एन सी आर माइनस 1 प्रीवियस, तो न्यूमरेटर में लेना है एन माइनस आर प्लस 1 और ये आर डिनोमिनेटर में लेना है। यहाँ पे एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर माइनस 2 अपॉन एन सी आर माइनस 1। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके प्रीवियस टर्म ऊपर है, यहाँ पे प्रीवियस टर्म नीचे होना, फॉर्मूला उल्टा है यहाँ पे, तो एन माइनस आर प्लस 2 ये टर्म डिनोमिनेटर में आएंगे और एन माइनस आर न्यूमरेटर में, क्योंकि प्रीवियस एन सी आर इसका प्रीवियस कोएफिशिएंट एन सी आर माइनस 1, यहाँ पे एन सी आर माइनस 1 का प्रीवियस कोएफिशिएंट ऊपर है एन सी आर माइनस 2। फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देना है, एन माइनस आर प्लस 2 डिनोमिनेटर में और आर माइनस 1 न्यूमरेटर में, और ये गिवन है रेशो 1/3 आर माइनस 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 1/3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3r माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 2 और एन माइनस 4r प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर इक्वल टू आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 का फॉर्मूला एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, तो इसका रेसिप्रोकल आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। द रेशियो इज गिवन 3/5 यानी एन आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इक्वेशन आ गए और एन 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 8r प्लस 10 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है 3n, सेकंड इक्वेशन है 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। इनके सब्ट्रैक्शन किए, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कैंसल, तो हो गया माइनस n प्लस 7 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 7। n इक्वल टू 7 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, n इक्वल टू 7 वी गेट r इक्वल टू 3। n इक्वल टू 7 r इक्वल टू 3, ये हो गए n और r के वैल्यूज। फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू 5 इन x प्लस 3 रेज़ टू 8। इसमें जनरल टर्म यानी आर प्लस 1 टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज़ टू एन माइनस आर वाई रेज़ टू आर। जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन की वैल्यू है 8 एन सी आर यानी 8 सी आर। फर्स्ट टर्म है एक्स रेज़ टू 8 माइनस आर, सेकेंड टर्म 3 रेज़ टू आर। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू 5 होना, यानी x का पावर 5 होना था, 8 माइनस आर इक्वल टू 5 और x रेज़ टू 5 8 माइनस आर इक्वल टू 5। x का इंडेक्स 5, x रेज़ टू 5 यानी x का इंडेक्स 5 था, 8 माइनस आर इक्वल टू 5, r इक्वल टू 3। r इक्वल टू 3 रखने के बाद में x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट्स 8 सी आर और 3 रेज़ टू r, एंड देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 8 सी आर, r मीन्स 3, 8 सी 3 रेज़ टू r यानी 3 रेज़ टू 3। 8 सी आर यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज़ टू 3। 8 को 5 तक सिंप्लीफाई करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसल, 3 to 6 कैंसल, 57 इंटू 27 दैट इज इक्वल टू 1512। Find the coefficient of x raised to 5 in the product 1 plus 2x whole raised to 6 into 1 minus x whole raised to 7 using binomial theorem। इसमें पहले तो 1 plus 2x whole raised to 6 को एक्सपेंड करेंगे। फॉर्मूला है 6 से 0, इंडेक्स 6 है तो 6 से 0 प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट 6 से 1 इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 2x प्लस 6 से 2 सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है
plus 6c3 2x whole cube plus 6c4 2x whole raised to 4 plus 6c5 2x whole raised to 5 plus 6c6 2x whole raised to 6. 6c0 and a 1. 6c1 and a 6. 6 into 2 12x. 6c2 and a 6 into 5 30 divided by 2 15. 15 into 2 का square 4 that is 60. 60x square. 6c3 and a 6 into 5 into 4 divided by 6 and a 20. 20 into 8. 2 cube means 8 then 160 x cube 2 raised to 4 and a 16. 6c2 and a 6c4 equal to 6c2. 6c2 है 15. 15 into 4 you got 60 into 4 that is 240 x raised to 4. 6c5 and a 6. 6 into 2 raised to 5 then 192 x raised to 5. 6c6 means 1. 2 raised to 6 and 64 x raised to 6. बाद में 1 माइनस एक्स होल रेस्ट टू 7 माइनस इसलिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव. इंडेक्स 7 है तो 7c0 माइनस 7c1 इंटू एक्स प्लस 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 एक्स क्यूब प्लस 7c4 एक्स रेस्ट टू 4 माइनस 7c5 एक्स रेस्ट टू 5 प्लस 7c6 एक्स रेस्ट टू 6 माइनस 7c7 एक्स रेस्ट टू 7. 7c0 means 1. 7c1 means 7. 7c2 means 7 into 6 42 divided by 2 21. 7c3 7 into 6 into 5 divided by 6 and 35. 7c4 और 7c3 सेम है and 35. 7c5 और 7c2 सेम है and 21. 7c6 means 7c1 that is 7. 7c7 means 1. बाद में दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे. अब अपने का टर्म कौन से होना है एक्स रेस टू 5 की टर्म. एक्स रेस टू 5 है 1 और ये टर्म मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेस टू 5 आता. सो टर्म कंटिन्यूइंग एक्स रेस टू 5 1 इंटू माइनस 21 एक्स रेस टू 5 प्लस 12x इंटू 34 एक्स रेस टू 4. यहाँ पे एक्स रेस टू 5 आता है x इंटू एक्स रेस टू 4 एंड एक्स रेस टू 5. 60x स्क्वायर इंटू माइनस 35x क्यूब प्लस 160x क्यूब इंटू 21x स्क्वायर प्लस 240x रेस टू 4 इंटू माइनस 7x प्लस 192x रेस टू 5 इंटू 1. एंड इनको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये टर्म्स आ गए और x रेस टू 5 के कोई टर्म्स ऐड कर दिया तो 171x स्क्वायर. x रेस टू 5 का कोएफिशिएंट्स हो गया 171. कैलकुलेशन पार्ट है. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 55 इन द एक्सपेंशन ऑफ समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 to 100 cm x माइनस 3 रेज़ टू 100 माइनस m 2 रेज़ टू m. समेशन ऑफ 100 cm x माइनस 3 रेज़ टू 100 माइनस m 2 रेज़ टू m. Summation of NCR x raised to n minus r y raised to r. ये हो गया x प्लस y होल रेस्ट टू यहाँ पे r इक्वल टू 0 to n तो n आएगा x प्लस y रेस्ट टू n. n माइनस r 100 माइनस m r यानी m. फर्स्ट टर्म है x माइनस 3 सेकेंड टर्म है 2 100 cm m के लिए 0 से 100 तो ये गया x माइनस 3 प्लस 2 x प्लस y रेस टू n. n मीन्स 100. x माइनस 3 प्लस 1 दैट इज x माइनस 1 रेस टू 100. पावर इवन है तो इवन में x माइनस 1 को 1 माइनस 6 लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ता तो 1 माइनस x होल रेस टू 100. अब कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 53 x रेस टू 53 टर्म आएंगे 54th टर्म है T54 and therefore T54 equal to 100 C53. Second term negative the minus x whole raised to 53 minus x whole raised to 53. यहाँ पे अपने को कोएफिशिएंट होना है x raised to 53 का. x raised to 53 का कोएफिशिएंट माइनस साइन रहेंगे माइनस 1 raised to 53 मीन्स माइनस
100C3. So coefficient is minus sign 100C53. Minus 1 raised to 53 means minus, say minus sign 100C53. That is the coefficient of x raised to 53.